اب یہاں پر مقدس پولس خدا کے خادم فرماتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہے، جس طرح روح بھی ہماری، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ روح ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی روح ہماری کمزوری میں؟ یہاں پر مقدس پولس فرماتے ہیں کہ روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ اور کس لیے مدد کرتا ہے؟ کس جگہ پر جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو روح ہماری مدد کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے واسطے کیا بھیجتا ہوں؟ میں جاتا ہوں تمہارے واسطے کیا کرتا ہوں؟ دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ پھر مسیح یسوع نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تمہارے اندر ہوں۔ آمین۔ اندر مسیح یسوع کیسے؟ اندر روح القدس کی قدرت سے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور مقدس پولس فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں کیا ہوا ہے؟ بسا ہوا۔ بس اپنے بدنوں سے کس کا جلال ظاہر کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور یہاں پر مقدس پولس فرماتے کہ روح ہماری کمزوری میں، روح القدس ہماری کمزوری میں ہمیں زور دیتا ہے۔ اور کیوں زور دیتا ہے؟ کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے، سمجھ آئی کس جگہ پر روح القدس میں زور دیتا ہے؟ جس طریقے سے، جس طرح سے، جس قوت میں، جس مسا کے اندر مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، ہم نہیں کر پاتے، ہم نہیں کر پاتے۔ اور روح ہمیں قوت بخشتا ہے کہ ہم دعا کر سکیں۔ اکثر ہوتا کیا جب چرچ میں، کلیسیا میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ایک شخص پاس بیٹھا بڑے زور کے ساتھ دعا کر رہا ہے، جھوم کر دعا کر رہا ہے، ایک شخص واسیاں مار رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص روح القدس کو موقع ہی نہیں دے رہا کہ میری زندگی کے اندر آئے اور مجھے دعا کرنے کی قوت دے۔ روح القدس مجھے اور آپ کو کمزور نہیں رہنے دیتا۔ پاک روح اسی لیے آیا کہ وہ میری اور آپ کی مدد کرے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے پاک روح کو بھیجا کہ وہ زمین پر کلیسیا کی مدد کرے۔ اور جس طور پر مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے، اور جس طریقے کی دعا خداوند خدا چاہتے ہم نہیں کر پاتے، جس زور کے ساتھ خداوند چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کریں، اس کی مدد سرائی کریں، لوگ اس طریقے سے اس کی پرستش نہیں کرتے۔ لیکن پاک روح القدس کلیسیا کو جھنجھوڑتا ہے، کلیسیا کو تیار کرتا ہے کہ کلیسیا اس طریقے سے دعا کرے، کیونکہ وہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور ہے۔ اور زور تب ہوتا ہے جب ہم اپنی آواز، اپنا کنٹرول اور اپنا اختیار جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ روح القدس کے تابع کریں گے اور کہیں گے کہ میری زندگی کے اندر کام کر دو، آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ لیکن جب ہم اسے موقع نہیں دیں گے، اور آپ کے اندر ہر ایک شخص کے اندر پاک روح ہے، آمین، لیکن ہم نے کبھی اس سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کیسے؟ ایک آیت میرے ساتھ پڑھے ذرا، غلطیوں 5 باب 16ویں آیت سے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو، تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ آمین۔ اب یہاں پر خدا کا بندہ پولس فرماتا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ آمین۔ اب روح کے موافق جب ہم چلیں گے تو جسم کی خواہشوں پر ہم غالب آئیں گے۔ جسم کی خواہشوں پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ اور عبادت میں بیٹھے ہوئے جسم کی خواہش ہے کہ نیند آئے مجھے، میں تھکا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اور یہ بھی جسم کی خواہش ہے نا، نیند آنا، سو جانا عبادت کے اندر، اور دوسروں کو بھی ساتھ کیا کہتے ہیں
सुस्ती डाल देना। अब यहाँ पर वो फरमाता है रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हम इबादत में बैठे हुए भी अपने माइंड को कभी भी रूह कुदस के ताबे नहीं करते। आप जब भी इबादत के अंदर आए घर से ही दुआ करें, 1 मिनट की चाहे दुआ करें। आप घर से निकलते हुए खुदावन मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूँ, कर देती हूँ। जब मैं आज गिरजाघर के अंदर जाऊं तो जब वर्शिप की जाए, आपका जलाल जाए हो तो मेरी रूह फ्रेश मस्सा हासिल करे। आमीन। नए मस्से को मैं खुदावन तेरे हजूर से हासिल करूँ। आमीन। घर से आपने प्रेयर करके आना है तो आपका दिमाग मेंटली तौर पर यहाँ पर होगा। आमीन। कि करो यहाँ जी सुते उठ के आ गए ना तो समझो तुझे कभी आके सुन नहीं पाए। हालेलुया। पाकरू काम कर रहा है, पाकरू कसरत के साथ जुम्मश कर रहा है, लेकिन सिर्फ फैसला मुझ पर और आप पर हम उसे कितनी दावत दें, हम उसे कितनी दावत दे रहे हैं। पाकरू क्या कर रहा है? पाकरू काम कर रहा है। और यहाँ पर वरदान मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म क्या करता है? जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं वो रूह के खिलाफ काम कर रही हैं। जो जिस्म की ख्वाहिशें वो ज़ाहिरी है, वो नजर आने वाली है। आमीन। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, रूह कुदस से ममूर होकर मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो बदन की ख्वाहिश है वो हमें दुनियादारी की चीजें दिखाएगा कि हम रूह के मुआफिक ना चले, रूह के फलों को हासिल ना करें। रूह के फल मोहब्बत, अगर हम मोहब्बत अपनी जिंदगी में लाएंगे तो जब आप ये फैसला करेंगे कि मैंने मोहब्बत में बढ़ना है, मोहब्बत में चलना है, तो इब्लीस आपके अंदर नफरत का बीज बोना क्या कर देगा? वो आपके अंदर से जिस्म की ख्वाहिश उठेगी कि मैं इस शख्स से, इस बेटी से, इस बेटे से मोहब्बत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जिस्म की ख्वाहिश बढ़ना शुरू हो चुकी है। रूह हमें मोहब्बत में बढ़ाता है, रूह हमें ताजगी में बढ़ाता है, रूह हमें एक दूसरे के लिए फिक्र करने में बढ़ाता है, लेकिन जिस्म की ख्वाहिश एक दूसरे के अंदर नफरतें तफरीके डालना शुरू कर देती है। इसलिए मुकद्दस पलूस फरमाता है कि रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। आमीन। क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि पाकरू रंजीदा हो जाता है। पाकरू क्या हो जाता है? होता है कि नहीं होता? पूरी बाइबल के अंदर सबसे मुश्किल टॉपिक पाकरू को बयान करना है। किसको बयान करना? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के हक में जो कुछ तो तुम बोलोगे, कहोगे वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन रूह के हक में अगर कोई शख्स बोलेगा तो वो कभी माफी नहीं होगी, उसको माफ नहीं किया जाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह इख्तियार के साथ तालीम दे रहे थे, इख्तियार के साथ बदरूहों को निकाल रहे थे, तो लोगों ने वहां पर खड़े जो लोग देख रहे थे खुदावंद यीशु के बारे में कहने लगे कि इसमें क्या है? बुरी रूह है। इसमें क्या है? बुरी रूह है। और ये बलज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। इसके अंदर बुरा रूह है जो बदरूहों को निकाल रहा है। उस वक्त यीशु ने इस बात को कहा कि जो कुछ इब्ने आदम के हक में तो कुफर बका जाएगा वो तो माफ कर दिया जाएगा बदन के खिलाफ। किसके खिलाफ? बदन के खिलाफ। लेकिन जो रूह कुदरत जो यीशु मसीह के अंदर था, जो रूह के खिलाफ बोला जाएगा, उस शख्स का गुनाह कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए खुदावंद को वहाँ जरूरत पड़ी इस बात को कहने की। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के अंदर जो खुदा बाप का पात्र रूह था उसके बारे में बोलना शुरू हो गया कि इसके अंदर बुरा रूह है। उस जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के हक में जो कुछ भी कहोगे उसकी माफी है, लेकिन जो इब्ने आदम के अंदर है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते हैं रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। और क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? रूह और
जिस्म क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ है, इनका आपस में बैर है। ये जहाँ रखे ना बैर एक दूसरे ना, जिस्म का तो रूह नहीं बैर है। और जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? जरा कायनात आगे कि जिस्म के काम क्या है? जो जिस्म ख्वाहिश करता है वो क्या ख्वाहिश करता है? अब जिस्म के काम तो क्या है? जाहिर है, पहला हरामकारी, अपनी बीवी होने के बावजूद भी दूसरों की बीवियां देखना, ये क्या है? हरामकारी है। अपने घर में होकर भी दूसरों की बीवी को बुरी नजर से देखना, ये क्या है? हरामकारी। और ये जिस्म की ख्वाहिश है। ये किसकी ख्वाहिश है? जिस्म की ख्वाहिश है। और नापाकी, हर वक्त नापाक सोच रखना, गुनाह से परे रहना। और शहवत परस्ती, आगे वो फरमाता बुत परस्ती और जादूगरी। बुत परस्ती, जादूगरी। आज कलीसिया बुत परस्ती दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी हम बुत परस्ती नहीं करते, हम बुत परस्ती नहीं करते। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी काम को अव्वल दर्जा देते हैं तो वो बुत परस्ती है। वो क्या है? बुत परस्ती है। यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी काम को हम ज्यादा इज्जत, ज्यादा टाइम, ज्यादा फॉलो करते हैं तो वो क्या है? बुत परस्ती। मिसाल के तौर पर सादा अल्फाजों में मोबाइल क्या है? 24 घंटों में हमारे 18 घंटे मोबाइल पर गुजरते हैं। 24 घंटों में 18 घंटे हमारे कहाँ पर गुजरते हैं? इतना कभी आज के दौर में अपने बच्चे का मुंह नहीं लोग देखते जितना मोबाइल का देखते हैं। होता कि नहीं ऐसा? इतना टाइम हम अपनी फैमिली को नहीं दे रहे जितना मोबाइल को दे रहे हैं। और यहाँ पर वो कहता है बुत परस्ती। अब हम आगे मूर्त बनिए सजदा तो नहीं कर रहे, लेकिन ये ऐसी मूर्त है, मोबाइल नजर नहीं आता लेकिन सारी कलीसिया सजदे में है। सजदे में है कि नहीं? उठते बैठते, सुबह उठते वक्त सबसे पहले मोबाइल का चेहरा देखना, हम समझ ये बुत परस्ती के बराबर है। हमने खुदा से ज्यादा दर्जा इस मोबाइल को दिया। और ये क्या है? क्योंकि अगर हम एडवांस दौर में जा रहे हैं तो पुलिस भी एडवांस दौर का फार्मूला इस्तेमाल करता है। हम सोचते हैं कि वो भी पुराने फार्मूले इस्तेमाल कर रहा है। नो, अगर कलीसिया इस वक्त एडवांस दौर के अंदर काम कर रही है तो अब पुलिस भी एडवांस दौर के फार्मूले इस्तेमाल कर रहा है। दिखने में ये बड़ा खूबसूरत दिख रहा है और दुनिया की तमाम खूबसूरती इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर हमें वो तमाम की तमाम बदन की ख्वाहिशें नजर आती हैं जो रूह के खिलाफ काम करती हैं। कितने लोगों को समझ आई? समझ आ रही है? आगे वो फरमाता है जादूगरी, झगड़े। क्या है जी? झगड़े। ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं। ये क्या है? जिस्म की ख्वाहिशें हैं। और गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग, ये सारी की सारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं। और ये सारी की सारी रूह के खिलाफ काम करती हैं। पाक रूह जो हमारी जिंदगियों के अंदर है वो कभी भी नहीं चाहता कि हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करें। पाक रूह हमें खुदा के साथ जोड़ता है। आए जरा रोमियो के खत में चले, पाक रूह क्यों हमारी मदद करता है जी। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर क्यों करता है? हमारे अंदर क्यों रहता है? बदन क्या काम करता है? जिस्म की ख्वाहिशें। कितने लोगों को समझ आई है? सबको समझ आई है? रूह क्यों हमारी कमजोरी में मदद करता है, किस लिए करता है? सुनिए गौर से। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिकायत करता है। आहें भरना किसे कहते हैं? कितने लोग जानते हैं आहें भरना? रोना। जो बंदा को बहुत ही रोना, बंदा बहुत ही दुखी हो के साथ आके रूह कुदस हमारी, आपकी और मेरी शिकायत करता है खुदा बाप के हुजूर में। क्या करता है? अक्सर कभी देखा आपने दुआ के अंदर बहनें रो रही होती हैं, भाई रो रहे होते हैं, तो रूह कुदस रुलाता है। समझ आई? रूह कुदस रुलाता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, रूह कुदस आहें भरता है फिर आपकी जिंदगी के अंदर, फिर आपको झंझोड़ता है, फिर आप जब झंझोड़े जाते हैं फिर आपके आंसू जारी हो जाते हैं, और फिर आपको पता नहीं कि आपने 15 मिनट से 20 घंटे कितनी
आती है, आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि वो हमें दुआ करने की कुव्वत देता है, वो हमारी कमजोरी में हमें जोर देता है, और इसलिए जोर देता है कि वो हमारे लिए शिफायत करता है। किसके हजूर? खुदा के हजूर में। आमीन जी। आगे पढ़े तो जल्दी से। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। किसकी मर्जी के मुआफिक शिफायत करता है? खुदा की मर्जी के मुआफिक। आमीन। अक्सर ना लोग पाखरू छूने से, पाखरू टच कर, हमारे कहने से नहीं, खुदा की मर्जी से जिससे उसने छूना वो छू कर जाता है। आमीन। हमारी मर्जी से नहीं। रूह कुदस किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। रूह कुदस किसी इंसान के कहने से कभी नाजिल नहीं हुआ। रूह कुदस अपनी मर्जी से नाजिल होता है जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ लोग प्यासे होते हैं, जो शिकायत कर रहे होते हैं, वहाँ रूह कुदस नाजिल हो जाता है। किसी खादम के कहने से रूह कुदस नाजिल होने वाला नहीं है। रूह कुदस तब नाजिल होता है जब कलीसिया ईमानदार यकदिल हो जाते हैं, पाक रूह उसी वक्त लम्हों में काम करना शुरू कर देता है। वो हमारे अंदर ही होता है। हालेलुया। सिर्फ उसे बाहर निकालने की क्या है? जरूरत है। क्यों नहीं वो काम करता? क्योंकि हमारे बदन की ख्वाहिशों ने पाक रूह को कभी काम करने नहीं दिया। हमारे बदन की जो ख्वाहिशें रूह कुदस को दबा देती हैं, जब हमारे बदन की ख्वाहिशें आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं जाएंगी, रूह कुदस खुद ब खुद बदन के अंदर काम करना शुरू कर देगा। और रूह कुदस खुदा की मर्जी से क्या करता है? काम करता है। आगे पढ़े जरा। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए। हमको मालूम है, हमको क्या है? मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं मुझे और आप सबको मालूम है, और आज हम जितने यहाँ पर बैठे हमें भी क्या है? मालूम है। और हम सबको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती है? भलाई पैदा करती है। आमीन। हम सब जानते हैं कि रूह कुदस खुदा की मर्जी से काम करता है। रूह कुदस सारी कलीसिया के लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक चलती है, उन सब के लिए भलाई पैदा करता है। आमीन। अगर आज आप मुश्किलातों के अंदर हैं तो रूह कुदस को मौका दे वो आपकी जिंदगी के अंदर भलाई पैदा करने को। आमीन। उसे मौका दे, उसे कहें कि मेरी जिंदगी के अंदर तू है, अपना कंट्रोल मुझ पर जारी कर दे। आमीन। फिर मत देखेंगे आप इबादत में बैठे हुए भी टाइम पीस को नहीं देखेंगे, क्योंकि पाक रूह कभी भी आपको दुनियादारी की ख्वाहिशों में नहीं आने देगा। वो खुदा के साथ आपको जोड़े रखेगा, कनेक्शन हो जाता है। आमीन। 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 आगे पढ़े जा जल्दी से। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। किसके हम शक्ल हो? उसके बेटे यानी कि यीशु मसीह के हम शक्ल हो, ताकि वो सारों में क्या ठहरे? पहलौठा ठहरे। आमीन। हम सब ने यीशु मसीह की मानित बनना है। हम सब ने किसकी मानित बनना है? यीशु मसीह की मानित। और यीशु मसीह की मानित हमें खुदा का पाक रूह बनाता है। आमीन। हम सब ने यीशु मसीह की मानित बनना है, और पाक रूह को मौका दे वो आपको यीशु की मानित बनाएगा। आमीन। अब जब भी आप दुआ करें, चर्च में आए, तो खुले दिल के साथ खुदा की प्रतिष्ठा करें। जैसे भी हम गीत में गा रहे थे, दिल वाले खोल हुए बारियां, हुए बारियां। आमीन। जब दिल को खोलेंगे तो रूह को जलाली काम करता है, वो मौजूद होता है, सिर्फ मौका देने की जरूरत है, वो काम भी करता है। लेकिन अगर बैठा हुआ इधर मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं इधर कलाम सुना रहा हूँ, सोच मेरी कहीं दूसरी जगह पर होगी, तो मैं क्या बयान करूँगा? हाँ, क्या बयान करूँगा? मैं क्या बयान करूँगा? कुछ कर सकता हूँ? अगर आप यहाँ पर बैठे, प्रस्तिश हो रही है, पादरी साहब परस्तार पसीनों पसीनी, टोला तले पसीनों पसीनी, ये कलीसिया तले बासियां मार रही है, कुछ होएगा? कुछ होएगा? कुछ होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत आपको आसमान की बादशाही में शामिल करे, तो अपने आप को फ्रेश
لیے کیا کرے اور جوش کے ساتھ اس کی بندگی کرے, اس کی عبادت کرے. اور مہینے بعد خود گواہی دو گے پادری صاحب اور میری زندگی چ بڑا مجھے دعا کرنا موقع دو, میں بیماروں سے دعا کرنا چاہنی ہے, دعا کرنا چاہنا. جی آ کے سستی ہوئی اینج پائی رکھنی ہے تو کوئی روح کو موقع نہیں دے. اور جسم کی خواہش تارتے کی آ گئی, غالب آ گئی. ان جسموں کی خواہشوں کو رد کرنا ہے, اور جب وہ حضوری میں آ جاتے ہیں تو کثرت کے ساتھ, زور کے ساتھ اس کی بندگی, اس کی عبادت کرے تاکہ خدا کا جلال آپ کے بدنوں میں کیا ہو, ظاہر ہو. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ مجھے اور آپ کو برکت دے.